Very good. Very nice. This is the way of taking Ashirwad. Very good. Thank you, sir. Oh, over. Oh, big hand to Madam for this. Sir, I now request that students who are not present may please be awarded the degree in absentia. Thanks, please go ahead. By virtue of the authority vested in me by the university as the director, I award the degree in absentia to all those successful students who could not receive the degree in person at this convocation. Sir, I now present those meritorious students who have been adjudged for the Dr. Kulwant Rai Gold and Silver Medal for overall excellence in academic and curricular activities. I request Honorable Chief Guest to please give away the students' medal. There are 21 medallion awardees, of which 3 gold and 18 silver. The awardees present in the convocation hall today are 5. Please come. This is important. This is the ceremony. Come. Yeah, come. Sir, I now present you the recipient of Dr. Kulwant Rai Gold Medal for overall excellence. Vibha Verma. Sir, I now present you the recipient of Dr. Kulwant Rai Silver Medal for securing first position in their stream. Anshik Kaushal. Naveen Mani Tripathi. पूरा सेरेमनी मुझे पता ना कहाँ खड़े होना है ये वैसा का काम नहीं Gigi Subramaniam. Vibha Verma. Tejasvi Rana.
So, this concludes the award of degree and medals. Sir, may I now request you to kindly deliver your convocation address. परम आदरणीय श्री राय साहब, मैडम राय, आनंद जी, आरती मैडम, अंजलि मैडम, अनुपम सर, I am really delighted to be amongst you and to meet people like you. You are really great people, simply because you are doing something which your forefathers actually visioned. And you are trying to fulfill the vision of your forefathers. I salute you for that. As the Vice Chancellor of this university, with which this IIRM is attached, it gives me immense pleasure and it's a matter of honor for me to actually felicitate those families who have their institutes inspired by their parents or grandparents. And I can assure you, when we do things in our life in the name of our parents and grandparents, we always succeed. And that is what is manifested here when we see the success of IIRM. I am really delighted to be amongst you today. Thank you very much for inviting me. General Wadhwa, thank you very much for coming to Lucknow and inviting me. You are a wonderful person. Thank you. And when I first time met with you, I was so damn impressed. A person with such a great carriage and highly disciplined, knowledgeable, a personality which anybody would like really to get into his shoes. Thank you very much, General Wadhwa, for being in my life and for meeting me that day. I am really delighted you came down to Lucknow to invite me, and I am really honored to be here sitting and sharing the dais with you. Chati Madam, thank you very much. Aapne khub bhalo. I have interacted with Madam, I think a couple of times in the meetings, and what I have found in her is she is very enthusiastic about doing things new, doing things novel, unique, innovative. And let me tell you, my dear friends, something which I like most and which I admire most is being new, innovative, novel, every time unique. And that is your madam. And that is seen by the way the performance of these students. All credit goes to you, madam. Thank you very much. My only sincere request to you is, bless them by your smile. My dear Shemaji, thank you very much for taking pains of coming to my residence and picking me up from the home. I am really delighted and very grateful to you. He gave me a tuition about IIRM, about the whole family of Rayas, and about the complete business that they are in. And for that tuition, he did not charge me. I welcome the gratified faculty, the deans and the HODs who are sitting on the back side of the desk. But actually, in fact, you are in the front side, virtually speaking. In real terms, you are physically sitting on the back side, but actually you are in the front. Because what your students have got today is the demonstration of what you have in you in the form of strength. And I salute you for that strength and for your dedication and devotion for taking the education in UPTU to greater heights and to such level of excellence. Thank you very much. मैं उन सब अभिभावकों को नमन करता हूँ जो आज जिन्होंने अपने बच्चों को डिग्री लेते हुए देखा, मेरिट अवार्ड्स लेते हुए देखा। मैं उनको नमन करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा सरस्वती वंदना गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबकी वाणी में बहुत गहराई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर और बड़ा तारतम्य था। और दोस्तों, मैं आपसे जैसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जीवन में यदि हम तारतम्य में कंट्रीब्यूटर बन सके तो जीवन का अर्थ सफल होता है। तो आपसे मैंने आज सीखा, कितना बढ़िया सरस्वती, यही वंदना मैंने कई जगह सुनी होगी, लेकिन आपसे सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुखद लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस। My dear friends, today is the Dikshant Samaroh. And Dikshant is a word
which no English or any other language can actually translate, or you can never actually understand this meaning unless you are an Indian. Only the Indian students can understand and appreciate what is Dikshant. महाभारत में एक एपिसोड है, और एपिसोड है उसमें समय है ना राज साहब, कुछ बोल सकते हैं ना 10 मिनट में? समय नहीं है तो हम वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि हम हमारी थोड़ी बुरी आदत है बोलने की थोड़ा, और स्टूडेंट्स मिल जाए जो सुनने वाले हो, ताली बजा के हंस के बात करने वाले हो। तो महाभारत में एक एपिसोड है जिसमें अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, पिता हैं उनके गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के। हे पिताश्री सुनो, आज हम ऐसा कार्य करके आए हैं कि आप बड़े प्रसन्न हो गए हमारे कार्य से। आप तो हमेशा हमसे कहते थे कि कुछ ऐसा हो कि मेरा पुत्र किसी राज्य का राजा बने, और आज हमने जो कार्य किया है आप समझ नहीं सकते कि आपका पुत्र ही नहीं, आपकी आगे आने वाली जनरेशन भी, वंशज भी राजा बनेंगे। तो अश्वत्थामा कहते हैं, पुत्र क्या करके आए हो? पिताश्री, आज हमने एक ऐसी संधि की है मित्र दुर्योधन के साथ कि हम एक राज्य के राजा बनेंगे, क्योंकि आज दुर्योधन का राज्याभिषेक होने वाला है। तो गुरु द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य होता है, और वो कहते हैं, ये क्या कह रहे हो पुत्र? महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो दुर्योधन को राज्याभिषेक कर रहे हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो अश्वत्थामा was very excited, you know, he was management graduate plus also engineering background, MBA degree of those times. So these days MBA degrees are always achieving the targets. So he was very much on the target and he was about to achieve. So he did not bother about all the maryadas, and he questioned his father, what the hell you are talking, my dear father, Guru Dronacharya? आप महाराज के कार्य क्षेत्र में और उनके अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। पिताश्री, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न आप महाराज के बारे में कैसे कर सकते हैं? तो गुरु द्रोणाचार्य थोड़ा सा हंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुत्र की कितनी क्षमताएं हैं, वो उनके पिता हैं। और याद रखिए, आप सबको बता रहा हूं कि माँ बाप में जो क्षमताएं हैं उसके अगर चरणों तक भी आप पहुंच जाएंगे तो आप समझेंगे कि आप धन्य हुए उन माँ बाप के। तो वो बोलते हैं, अश्वत्थामा सुनो, हम प्रश्न महाराज के ऊपर नहीं कर रहे हैं, प्रश्न अपनी अस्मिता पर कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके गुरु होते हैं। सब शांत हो जाता है। अश्वत्थामा को कुछ समझ नहीं आता, जैसे आजकल की जनरेशन को कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है, और समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा लर्नर हैं। माँ बाप कहेंगे बेटा ये कर लो, यही नहीं करना। अच्छा क्या कर रहे हो? वो कर रहे हैं जो हमारे दोस्त ने व्हाट्सएप पे भेजा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, महाराज धृतराष्ट्र जो बहुत जल्दी में रहते हैं, अनाउंस करने वाले हैं कि आज दुर्योधन का राज्याभिषेक होगा। तो उसी पल, उसी क्षण गुरु द्रोणाचार्य एंटर करते हैं राज्यसभा में। महाराज आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो धृतराष्ट्र का बड़ा मूड ऑफ हो जाता है, गेट्स डिस्टर्ब। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? जीवन में ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो कोई ना कोई इस प्रकार से प्रकट होता है कि हमारे सारे जो प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जियोपार्डाइज कर देते हैं। तो वो इमीडिएटली रेफर करते हैं कि हे विदुर, आप ही बताओ कि क्या क्यों कह रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य? तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि महाराज हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी मूर्तिकार हर मूर्ति को बनाता है और हर मूर्ति को सर्वश्रेष्ठ समझता है, लेकिन जिसको वो उत्तम सर्वोत्तम समझता है उसी मूर्ति में जान डालने की कोशिश करता है। उसका प्रयास होता है कि जो मूर्ति सर्वोत्तम है उसी में जान डाली जाए। तो बिना मूर्तिकार के ये भाव लाए हुए कि इस मूर्ति में जान डालनी है, आप कौन सी मूर्ति में जान डाल रहे हैं, ये कैसे संभव है? तो धृतराष्ट्र को कुछ समझ नहीं आता। जब हम इगोइस्टिक होते हैं, सिंगल पॉइंट ट्रैक होते हैं, हमें कुछ और समझ नहीं आता। और धृतराष्ट्र का सिंगल पॉइंट ट्रैक है कि कब जल्दी से जल्दी दुर्योधन कुरु प्रदेश के राजा बन जाए। फिर वो दोबारा से कहते हैं, विदुर आप समझाते क्यों नहीं सीधे शब्दों में कि गुरु चाहते क्या हैं? तो विदुर कहते हैं, महाराज गुरु ये चाहते हैं कि ये जितने भी शिष्य हैं, जिनमें से आप एक को चुन रहे हैं इस देश का राजा बनाने के लिए, वो इनके शिष्य हैं। और आप उनको चुन कैसे सकते हो जब तक कि वो दीक्षा ना दे दे? तो जब तक दीक्षांत समारोह नहीं हो जाए आप कैसे चुन सकते हैं? तो ये महत्व है दीक्षांत समारोह। तो सारे के सारे शिष्य एकदम उतावले हो जाते हैं। नंबर 1 इज दुर्योधन कि भाई क्या दीक्षा मांगेंगे, मांगो गुरुदेव।
तो पहले तो वो बड़े शांत रहते हैं, बिल्कुल स्थिर रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि यदि इस सभा में हमारे शिष्य, मेरे शिष्य, कोई भी यदि दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है तो हम इस सभा से प्रस्थान करते हैं और विचरण करते हैं। तो वो मुड़ जाते हैं, निकलते हैं। तो इमीडिएटली सबसे पहले दुर्योधन बोलते हैं, गुरुदेव आप बताइए तो सही, आपको दीक्षा में क्या चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं, वर्षों पहले मैंने सोचा था कि वो द्रुपद जिसने मेरा अपमान किया उसका सिर मैं अपने चरणों में चाहता हूं मेरे शिष्य के द्वारा। और ये थोड़ा सा आपके 5 मिनट चाहूंगा आप लोगों के जिन्होंने आज डिग्री ली है कि दीक्षांत का क्या महत्व होता है और दीक्षा का क्या महत्व होता है और शिक्षक दीक्षा के रूप में क्या चाहता है, तो कितनी सीरियसनेस, कितनी डिवोशन और डेडिकेशन के साथ वो आपसे चाहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट आपके चाहता हूं। तो वो कहते हैं कि आप कैसी दीक्षा चाहते हैं? तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने बता दिया। तो दुर्योधन तो बहुत मस्त किस्म के प्राणी थे और वो हमेशा डिपेंड करते थे अंगराज कर्ण पर, क्योंकि उनको ये था कि अंगराज कर्ण किसी भी समय, किसी भी क्षण अर्जुन को बीट कर सकते हैं और पांडवों को परास्त कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरी अपनी सेना तैयार की। अब तो राज्याभिषेक दुर्योधन का ही होगा क्योंकि हम द्रुपद का सिर लेके आएंगे। तो जैसे ही वो जाने वाले होते हैं, गुरु द्रोणाचार्य फिर आते हैं, कोई भी कौरवों में से द्रुपद का सिर लाने के लिए नहीं जाएगा क्योंकि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते। तो वो सब बोले कैसे? आपने सुना नहीं कि मैंने दीक्षा के रूप में ये कहा था कि मेरा शिष्य द्रुपद का सिर लेकर आएगा? मैंने ये नहीं कहा था कि किसी और का शिष्य वो सिर लेके आया और मेरा शिष्य उसको ये कहे, आकर ये क्लेम करे कि मैं ये सिर लेके आया हूं। मुझे कदापि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और बोले यदि नहीं हो सकता है ये तो कोई दिक्कत नहीं, मैं और अपने शिष्य तैयार करूंगा, तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा जब तक ये हो जाए। और कौरवों को वो डिबार कर देते। कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आज आपको डिग्री मिली है, ये बहुत बड़ी मर्यादा है और इस मर्यादा का बड़ा आदर करना और दीक्षा के रूप में वो करना जिसके लिए आपकी फैकल्टी ने, आपके पेरेंट्स ने, इस इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट ने, आप देखिए ऐसा इंस्टीट्यूट कहीं मिलेगा आपको? I was walking in the corridor and I was feeling so involved in the whole part of this institute, so very well designed. Everywhere you get natural light. And then I was telling to आनंद जी कि आप जल्दी से यहाँ पे अच्छे पेड़ लगाइए, क्योंकि जो संपन्नता होती है किसी भी तरह की, किसी भी धरती की, किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट की, वो एक एस्पेक्ट होता है बिल्डिंग्स, दूसरा एस्पेक्ट होता है वहां काम करने वाले लोग, वहां आने वाले छात्र, स्टूडेंट्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम कम्स फ्रॉम द नेचुरल सिस्टम्स। आप ये ना देखें कि आपके यहाँ कितने बच्चे एडमिट हुए, राय साहब से निवेदन है, ये ना देखें कि कितने बच्चे एडमिट हुए, आप ये देखें कि आपके यहाँ पिछले साल कितने तोते थे, इस बार कितने तोते हैं, कितने कबूतर थे, कितने माइग्रेटरी बर्ड्स आए। आप हंसते होंगे इस बात पर, लेकिन मैं ये अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। यदि आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल संपन्नता चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं, इस इकोसिस्टम पे आप ध्यान दीजिए। और दोस्तों आपसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हो, तो ये हमेशा याद रखो कि जिस भाव से, क्योंकि जहां भाव होता है वहां प्रभाव होता है और जहां भाव नहीं होता वहां सिर्फ अभाव होता है। तो जिस भाव से आपको आपके अध्यापकों ने पढ़ाया है, इस मैनेजमेंट ने आपके लिए वो सब इकोसिस्टम तैयार किया है, दीक्षा के रूप में वो सब करना जो उसको फुलफिल करता है। और याद रखो, आपके पेरेंट्स चाहे कितना गरीब से गरीब छात्र हो, कितने गरीब से गरीब पेरेंट्स हो, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा बेटा इतना बड़ा पैकेज ले आए। वो सिर्फ एक ही बात चाहते हैं, आपकी मां सिर्फ आपसे एक ही बात चाहती है, उसकी सिर्फ अभिलाषा और आशा एक ही है कि आप स्वस्थ रहो और आप एक अच्छे नागरिक बनकर रहो। वो ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा इतने लाख कमाता है, 10 लाख कमाता है। आप ले जाके एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, घर में जाइए, आप खूब सारा पैसा ले जाके मां को दे दीजिए, वो इमीडिएटली आपको बोली बेटा ये तो तू अपने रख ले, अपने बैंक में रख ले, मुझे पैसे का पता नहीं, तू पहले ये बता खाना खाया कि नहीं। सो इफ दैट इज द इंटेंट, you must remember on this Dikshan Samaroh that your Diksha would be complete and accomplished only when you establish yourself and you actually manifest everything that is desired
in the form of the guidelines that your teachers have set for you, in the way of the aims and objectives your parents have set for you, you should aim to achieve that. If you are able to achieve it, 100% is not always possible in life. But if you are in that direction, because direction is important. अगर दिशा सही है तो दशा सही होगी. तो आप अगर उस दिशा में बढ़ रहे हैं, 100% नहीं, 60%, 70%, if you are on the right track, your diksha, you have given it to your gurujis, to this management and to your parents. My dear friends, this is what I just wanted to tell you. The second point I want to tell you is, because Rai साहब ने permit कर दिया कि और थोड़ा time ले सकता हूँ मैं. The second point I want to tell you is about सामर्थ्य. देखिए जो डिग्री आपको मिली है वो आपकी मर्यादा है, लेकिन याद रखिए वो डिग्री आपकी मर्यादा अवश्य है, लेकिन वो आपका परिचय है. वो पूरे जीवन पर्यंत आपकी मर्यादा नहीं है. डिग्री आपका मात्र एक परिचय है. आपकी मर्यादाओं को तो आपको विकसित करना है. जैसे गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, शिष्यों सुनो, किसी भी साम्राज्य की सीमाएं उसकी मर्यादा नहीं, उसका परिचय मात्र होती है. एक राजा का ये कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वो इतनी कोशिश, इतनी मेहनत करे कि उन सीमाओं को आगे बढ़ाए, मर्यादाओं को आगे बढ़ाए, और सीमाओं को मर्यादा ना मानकर खाली मात्र परिचय लेकर आगे बढ़े जीवन में. आप भी इस डिग्री को मात्र अपना एक परिचय मानकर अपनी मर्यादाओं को विकसित करना. और मर्यादाओं को विकसित करने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला है, सामर्थ्य. मैंने इतने बच्चों से बातें की, आपको लगा होगा, हंसी में लगा होगा वाइस चांसलर ये सब बात कर रहा है. माय डियर फ्रेंड्स, आपसे कोई ऐसे बात नहीं करेगा जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाएंगे. अभी आप ऑलरेडी काम भी कर रहे होंगे ऑफिस में. आपका बॉस कभी आपको बुला के नहीं कहेगा आपकी गलती कहां है. वो अपने सबऑर्डिनेट को बोल देगा जो आपका इमीडिएट बॉस है, ये बकवास है यार, इसको काम मत देना. यू विल नेवर इवन कम टू नो व्हाई ही इज अनहैप्पी. एंड दैट इज वेयर योर वैल्यू ऑफ सामर्थ्य विल कम. यू फोकस ऑन योर सामर्थ्य, और सामर्थ्य पे तब आप फोकस कर पाएंगे जब आप दूसरों को अप्रिशिएट कर पाएंगे, जब आप एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड ला पाएंगे. हर चीज में ये देखो, मैंने एक स्टूडेंट से कहा कि व्हाट वुड यू लाइक टू से, एंड शी सेड नो, आई हैव नथिंग टू से. It is an opportunity. The Vice Chancellor is asking you what you want to say, and you say you have nothing to say. Even if you don't have anything to say, create several things to say. And when you have nothing to say, at least learn this habit of saying, wow, what a wonderful that you asked me this question. Why do you have to say you have nothing to say? Sir, I am delighted you have asked me this question. This itself is enough for me. I have nothing to say. That looks good, your answer that you have nothing to say. And this you please pick up in life, focus on सामर्थ्य. और सामर्थ्य का एक उदाहरण मैं महाभारत से देता हूं आपको.